السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہے؟ آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی صحت طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر میری آج کل ریپوٹیشن ٹھیک نہیں رہی۔ کیوں؟ یہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا، بزدار کام نہیں کر رہا، بزدار کام۔ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سارے ملک کے اوپر نظر ہے، اور انہوں نے جتنی میری تعریف کی ہے، اب باقی تو پیچھے کو گلہ شکوہ رہ نہیں جاتا۔ جتنی انہوں نے میری تعریف کی ہے، اتنی تو کوئی انسان نئی موٹر سائیکل لے تو اس کی تعریف نہیں کرتا۔ تعریف تو کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ تو سنا ہے کہ دورہ لاہور کے دوران خان صاحب نے آپ کو تھوڑا سا ڈانٹا بھی ہے۔ نہیں جنید صاحب، ڈانٹا نہیں ہے مجھے، تو انہوں نے بلا کے کہا کہ عثمان بزدار کام کو چھکو۔ کام کو چھکو؟ کام کو چھکو مطلب کام کو تیز کرو۔ اچھا، کام کو کھینچ کے رکھو۔ ہاں، یہ کوئی ڈانٹنا نہیں ہوتا، یہ ان کی روٹین ہے۔ جب وہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے تو اس وقت بھی وہ وسیم اکرم کو بھی یہی کہتے تھے، وسیم کام کو چھکو۔ اچھا، تو چونکہ میں سیاست میں ان کا وسیم اکرم ہوں، اس لیے کم کو چھکو اب وہ مجھے کہتے ہیں۔ لیکن بزدار صاحب آپ تھوڑا سا نا کام کو چھینک لیں، کیونکہ چھینک نہیں، چھینک تو ماری جاتی ہے، وہ والی چھینک یہ چھکو ہے، چھکو۔ اچھا چلے کام کو چھک لیں آپ کسی طرح، کیونکہ آپ کی تبدیلی کی افواہیں بھی زیر گردن۔ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے دشمنوں نے ہوا اڑائی ہوئی ہے۔ ویسے تو وہ میرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، اب تو پنجاب کی سرحدوں سے میں باہر نکل گیا ہوا ہوں۔ اچھا، اب تو وفاق کے معاملات میں بھی وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں۔ بہت زندہ باد۔ جی، ابھی انہوں نے مجھے بلایا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو سعودی عرب کے ولی عہد آ رہے ہیں ہمارے عزت مآب محمد صاحب، تو ان کے کھانے پینے کے لیے جتنا بھی ادھر تیاری ہوگی اس کے انچارج تم ہوگے۔ اچھا اگر نہیں آ سکتے تو ٹیلی فون پہ یہ ساری گائیڈنس دو ان کو۔ اچھا، تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ کتنا مرچ مسالہ رکھنا ہے، کتنا زیادہ گرم مسالہ ڈالنا ہے، ہری مرچ کس میں ڈالنی ہے کس میں نہیں ڈالنی ہے۔ آپ کو کس حساب میں انچارج بنا دیا؟ جنید صاحب اصل میں وہ ریگستانی علاقے سے آ رہے ہیں نا، مہمان ہیں جو ہمارے، تو میرا تعلق بھی چونکہ ریگستانی علاقے سے ہے، تو یہ ریگستانی لوگ جو رہنے والے ہوتے ہیں یہ ایک جیسی خوراک کھاتے ہیں، ان کا ٹیسٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہمارے ہاں بھی سجی وجی بنتی ہے تو یہ بھی سجی کھاتے ہیں زیادہ خوش ہو کے، تو اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مرچ مسالے کے ذمہ دار تم ہو۔ تو ذرا احتیاط سے کام کیجئے گا، اگر کسی بھی ڈش میں تھوڑا سا بھی مسالہ تیز ہو گیا تو آپ کی وزارت الگ گئی۔ نہیں، میں احتیاط کر رہا ہوں، میں نے تو روٹین سے بھی ہلکا رکھا ہے۔ یہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ اگر مرچ مسالہ تیز ہو گیا تو خان صاحب کو کہیں غصہ نہ چڑھ جائے، چونکہ خان صاحب نے بھی تو وہی کھانا ہے، اس لیے میں نے یہ آرڈر کر دیا کہ ذرا مرچ مسالہ ہلکا رکھنا ہے، چونکہ ہلکا مسالہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر کسی کو ضرورت پڑے مسالہ تیز کرنے کی تو وہ پکڑ کے اوپر دھوڑ لیتا ہے۔ یہ دھوڑ لے تو کیا ہے؟ اور سٹ گندے نہیں۔ یہ بات ہے۔ یہ کیا بات ہے ویسے؟ جنید صاحب اس فلسفی میں اکانومی بھی شامل ہے۔ اکانومی کہاں سے آ گئی؟ میں نے خان صاحب سے کہا ہے نا کہ اگر وہ مسالہ دھوڑنے کے لیے مانگے تو ان سے کہہ دیں کہ بھائی اس کے ایکسٹرا پیسے چارج کریں گے، جو آپ ہم لوگوں کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے آئے ہیں وہ پھر تھوڑے مہنگے ہوں گے کیونکہ مسالہ زیادہ لگ رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ہاں نا جنید صاحب، پھر کم کو چھکنا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اس دورے پہ بہت رول ہوگا۔ جی ہاں جنید صاحب، سارا کھانا تیار کروانا میرے ذمہ ہے۔ اچھا، میں نے تو شاہ جی کے سیکٹری سے بھی پوچھ لیا کہ یہ کیا کھاتی ہیں۔ شاہ جی کون؟ یہ جو شہنشاہ آ رہے ہیں شاہ صاحب، شاہ جی، اچھا۔ ان کے میں نے مینیجر سے پوچھا کہ یہ کیا کھاتے ہیں، انہوں نے کہا ہمس بھی تیار کروا لیں۔ اچھا، تو وہ پھر علن فقیر تو فوت ہو گئے ہوئے تھے، پھر میں نے ایک اور سندھی فنکار بلایا ہے، اس نے بڑا اچھا تیار کر دیا، ہمس ہمس کر پیارے، ہمس ہمس کر پیارے۔ استاد صاحب وہ ہما ہے، ہمس نہیں ہے۔ یہ تو ہمس ہمس ہی کہتے تھے، خدا کا تو انہوں نے تو تیار بھی کروا دیا، اب وہ سارے پیسے ضائع جائیں گے۔ وہ سر جی ہمس ہوتا ہے، تسی ہما ہی چھکی جا رہے ہو۔ وہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تو یہی پتا تھا کہ ہمس ہی ہے۔ اور شاہ جی کے سیکٹری نے بتایا ہے کہ مندی پکوا دو۔ اچھا، میں نے کہا مندی کیوں پکوائیں، ہم تو ساری چیزیں چنگی پکوانا چاہتے ہیں۔ بزدار صاحب مندی ان کی ایک ڈش کا نام ہے۔ آج جب انہوں نے مجھے کلیئر کیا ہے تو پھر میں نے اس کو کہا اپنے کوک کو، میں نے کہا کم کو چھکو، مندی بھی بناؤ اور ہمس بھی بناؤ۔ ایک منٹ ذرا فون آندا پی۔ ہلو جی ہاں ٹھیک ہے
सही को ताड़ा कोई क्लास फेलो है फैजान ओ आया है फैजान इंग्लैंड वाला इंग्लैंड वाले जी वो है तो उसको बुला लो ना, अभी तो काफी टाइम लगेगा इंटरव्यू का, उसको इधर ही बिठा दो। भेजो सही इज्जत आबरू नाल। और क्या क्या पक रहा है बुज़दार साहब? जो भी पक रहा है मेहमानों के लिए पक रहा है, तुम उसमें नजर ना रखो। तो जुनैद साहब इंशाल्लाह मेहमान हमारे खुश होके जाएंगे। मैंने तो गांव से बड़ियां मंगवाई हुई थी, वो भी कह दिया मेहमानों के लिए सारी पका दो। अच्छा हाँ जी, लस्सी का भी कह दिया चाटी वाली होनी चाहिए ताकि लस्सी जितनी मर्जी पिए खुश होके। अच्छा खट्टा दही मंगवा के मैंने उनके लिए कड़ी भी बनवाने का कहा तो है। बुज़दार साहब उसमें पकौड़े डलवाएं। कड़ी में पकौड़े डलते हैं और उसमें गोश्त डलता है। सो जुनैद साहब इंशाल्लाह जितनी चीजें पकवाई हैं, इमरान खान साहब कहेंगे कि वाकई उस्मान बुज़दार ने कम कुछिक के रखे है। ठीक है। ये कौन है? ये कौन है? ये आवाज तो मेरे क्लास फेलो फैजान की लगती है। अस्सलामु अलैकुम। हक आ जाओ, क्या हाल है? बैठ जाओ आराम से, जरा इंटरव्यू दे ले तो फिर चलती। ये फैजान इंग्लैंड वाला क्या आपका दोस्त है? हाँ जी, मैं भी पहले इंग्लैंड वाला ही होता। क्या मतलब? ये इंग्लैंड में होता है? इंग्लैंड में नहीं होता। ये पप्पू ढोल वाले के साथ एक दफा इंग्लैंड गया था, तो फिर हम दोस्तों ने इसका नाम इंग्लैंड वाला डाल दिया। अच्छा ये मलंग है कोई? आज जुनैद साहब अभी तक तो मलंग है, अगर इसको भी कोई ओहदा मिल गया तो फिर ये भी हजामत बनवा लेगा। और यारा जे तेनू ओहदा मिल गया तो सानू भी मिल ही जासी। तुम्हें मिल जाना था, तुमने शोखी की है। क्या मतलब? जुनैद साहब बड़ी देर का वाकया, हम दोनों इकट्ठे जा रहे थे, रास्ते में हमें एक दरवेश मिला। उसने कहा है कि मुझे कुछ दो, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत बड़े ओहदे पे फाइज कर देगा। अच्छा मैंने उसको सीरियस लिया। मैंने फौरन अपनी साइकिल के कैरियर से रोटी वाला डब्बा उतार के उसके आगे खोल दिया। ये इसने उसका मजाक उड़ाया, ये रह गया है, मैं लग गया हुआ हूं। शुक्र करो दरवेश को रोटी चुक के नहीं खा गया, हुण ते मलांगे, वरना इन्हें पागल हो जाना सी। भाई साहब अपनी जुबान पे कंट्रोल रखे, मलंगों की बात दुआ नहीं लेते। अच्छा बुज़दार साहब छोड़े इन मलंगों को, कोई सूबे की तरफ तवज्जो दें। जुनैद साहब जितना मैं काम कर रहा हूँ आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। वो लोग शोर ज्यादा मचाते थे, मैंने शोर नहीं मचाया। मैं आराम से काम कर रहा हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब शोर मचा के लोगों को बताते थे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। शोर तो आप भी मचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये देखें ना, अभी आप जो पतंगबाजों के खिलाफ ऑपरेशन है, रोजाना आप दावे कर रहे हैं कि जी आनी हाथों से निपटेंगे। हर दूसरे दिन पंजाब के किसी न किसी शहर में कोई वाकया रूनुमा हो रहा है। तो सख्त बयान ही देने होते हैं ना। शहबाज शरीफ भी यही करते थे, वो को बसंत रोकने के लिए किसी के डोर के पिन्ने को टोक तो नहीं लगा देते थे। मगर सर क्या फायदा आपके बयानों का? फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर बसंत हुई है। कोई बात नहीं, उधर जुगत भी होती है, बसंत हो गई है तो फिर क्या है। बस भाई साहब, जितनी बसंत मनानी थी मना ली है, अब आगे बसंत नहीं होगी। ये गुजरांवाला में बसंत हो रही थी ना, बुज़दार साहब ने उतना धुंध पवा छोड़ी है। बुज़दार साहब ने कैसे दूध डलवा दी? और जी इन्होंने पवाई होनी है जी। आ फिल्मी गाने च जिन्नी धुंध पैंदी है, वो बुज़दार साहब दी मशीनां चलदियां ते पैंदी। फिजान ओ गाल को में लमका ना, जिਵੇਂ मैं फिजान को लमकाया है। वजीर आजम साहब ने आख्या है काम कुछ को। बुज़दार साहब आपका वो बयान बहुत हिट हुआ है, बल्कि कहना चाहिए आपका पहला बयान हिट हुआ है। बुज़दार साहब से पूछा गया है कि आपका ताल्लुक सराइकी इलाके से है, तो आपकी हमदर्दियां मुल्तान सुल्तान के साथ होंगी या लाहौर कलंदर के साथ होंगी? जी बड़ा खूबसूरत उन्होंने कहा, कोई भी जीते जीत अमन की होगी। जुनैद साहब मैं इसी तरह के बयान और भी बहुत सारे दे सकता हूँ, मैं इसलिए नहीं देता लोगों को समझ नहीं आनी। अब देखे ना, जिस तरह मैंने ये कहा है कि जीत अमन की होगी, इसमें भी एक फलसफा पिन्हा है। वैसे तो आप देखे कि ये जो मैंने पिन्हा इस्तेमाल किया है, इसमें भी एक फलसफा है। मगर ये जो मैंने अमन की जीत की बात की है, ये तो फलसफा मेरा पूरी दुनिया पे फैल गया, बल्कि इसकी हर तरफ से गश्तबाज सुनाई दे रही। सर गश्तबाज नहीं, बाज गश्त होता है। तुम बाज आओ, बाज के पंजे। मैं जो बात कर रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकती। जुनैद साहब ये जो मैंने अमन की जीत की बात की है, ये बचपन से मेरे ज़हन में बैठी हुई थी। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी मन की जीत, मन की जीत, शबनम और रहमान की। उधर से मैंने पिक किया कि ये अमन की जीत भी हो सकती है।
اور دیکھیں یہ کتنا سستا پروجیکٹ ہے. من کی جیت، امن کی جیت. صرف من کے آگے ایک الف لگانا پڑا مجھے، بغیر خرچے کے کام ہو گیا. اور ہمارا فلسفہ یہی ہے کہ قوم کے پیسے ضائع نہیں ہونے چاہیے. کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ الف لگا کے کام چلا لے. تو جنید صاحب پروجیکٹ تو ہمارے زیادہ اچھے اور بڑے ہیں. یہ پچھلی حکومت کے پروجیکٹ ایسے نہیں تھے مگر وہ مشہور زیادہ انہوں نے کر لیے تھے. ابھی میں کوئی کتاب ڈھونڈ رہا ہوں شہباز شریف کے طریقے، وہ یاد کر کے تو میں اپنے پروجیکٹ کو بھی پھر مشہور کر لوں گا. آپ اپنے پروجیکٹ کے گلے میں گھنٹی باندھ کے نا بیل کی طرح تو شہروں میں پرایا کریں، پیر علیہ دن ہوئے گا، پیر علیہ دن ہوئے گا. یا مذاق کر رہے ہیں؟ بزدار صاحب خدا کے لیے کچھ پرفارم کریں. اب تو لوگ آپ کے بارے میں بہت شکایتیں کرنے لگ گئے. جنید صاحب انشاءاللہ فکر نہ کریں، یہ جو شاہ جی دورہ کر رہے ہیں اس کے بعد ساری شکایتیں ختم ہو شاہ جائیں. جی کون سے؟ یہ جو آ رہے ہیں ولی عہد صاحب. کیا شکایتیں ختم ہو جائیں گی؟ جنید صاحب میں نے سوچا ہوا ہے انشاءاللہ جو میں نے ان کے سامنے پلاننگ رکھنی ہے نا، وہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ایک لیڈر کی ویژن کیا ہوتی ہے. اچھا انشاءاللہ وہاں سے میری ویژن کا پتہ چل جائے گا آپ کو. اچھا میں نے سارا منصوبہ بنایا ہوا ہے. سب سے پہلے جو میں نے بات کرنی ہے اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ میں اتنے اونچے عہدے پہ بھی جا کے اپنے حلقے کو، اپنے محلے کو، اپنی گلی کے لوگوں کو نہیں بولا. میں نے شاہ جی کو کہنا ہے کہ میرے گھر کے پیچھے جو گلی ہے اس کی سولنگ سب سے پہلے ٹھیک کروائے، اس کے لیے فنڈ چاہیے. اور دوسرا میں نے یہ ان کو بتانا ہے کہ میرے محلے کے اندر ایک سرکاری ٹوٹی لگی ہوئی ہے، وہ شہباز شریف کے وقت سے چو رہی ہے. شہباز شریف نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور اتنا چو رہی ہے، ٹپ پانی میں اس میں سے گر رہا ہوتا. جب سے یہ پانی چونا شروع ہوا ہے اس وقت میرے پاس تو اختیارات نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کے اوپر اینٹ باندھ دی تھی. اچھا زبردست. اب چونکہ میرے پاس اختیارات بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے مجھے شاہ جی کے پاس جانے کا موقع بھی مل رہا ہے، تو میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ اینٹ اتروا کے اس کی ٹپ بند کروائی جائے. یہ چھوٹے چھوٹے کام اپنے پلے سے کروائیں. جنید بھائی میرے پاس تو جتنے پیسے تھے میں تو آج تونسے کو دے بیٹھا ہوں. بزدار بھائی شاہ انہوں نے یہ بھی آکھنا کہ میرے یار نو جوگر لے کے دیو، ان میں ننگے پیری پھر اک گیا. جوگر لے دیتے تو پھر تینوں کسی نے ملانگ نہیں مننا. جوگر تینوں لے دیے ایڈا تو لاہور کلندر دا اوپنر جو جا تیرا ہیئر سٹائل ہے نا دل کردا تیرے وال پٹا. اے لے لا گھر جا کے پٹ دا رہا. ناظرین یہ مجھے لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو اعداد و شمار تمہارے سامنے رکھے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا. ہم نے اپنے بچوں کی شادی جو شہروں میں رہنے والے ہیں انہوں نے گاؤں دیہات میں کرنی نہیں، شجر ممنوع قرار دے دیا ہم نے. اور خدا کے لیے ہمیں سوچ سے باہر آنا ہوگا. اچھا بھائی جان، آج میں ایک عجیب و غریب مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے بھی مختلف ہم زاویوں سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ہم نے وطن عزیز کے اندر پتھر کی دیواریں کھڑی کر لی ہیں، خاص طور پہ ہم نے دیہاتوں اور شہروں کے درمیان، اور پھر جو دیہاتوں سے شہروں کی طرف جو آبادی کا انتقال ہے تیزی سے. ایک وقت ہوتا تھا کہ 70% آبادی تھی دیہات میں، 30% شہروں میں تھی، اور آج مختلف وجوہات کی بنیاد پہ یہ جو تناسب ہے یہ کم و بیش 50-50 ہو چکا ہے. تو اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی دفعہ ذکر بھی کر چکے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ تو ظاہر ہے کہ شہروں میں ملازمت کے حصول کے لیے، کاروبار کی غرض سے آتے ہیں. لیکن آپ کبھی غور کرو کہ جب کوئی پورا خاندان اٹھ کے گاؤں دیہات سے شہر میں آ کر آباد ہوتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ہمارے تعلیم کی وجہ سے بھی آتی ہے نا، بچوں کی تعلیم کی وجہ سے. اچھا ہمارے جو ریسرچر اپنے فاروق کیسر صاحب جو ہے، یہ میری بات سنو، وہ کیسر فاروق ہے اس کا نام، اور وہ یہ وضاحت کرتا ہے کہ جی جگت تو آپ نے کرنی ہوتی ہے مجھے، لیکن میرا نام ٹھیک لیا. یار مجھے بھی پتہ ہے کیسر فاروق ہے، میں ایرا کہہ دیتا ہوں فاروق کیسر. کوئی بات نہیں ہے کہ پیچھے دو میں نام لے لینے ہیں.
तो अपना जो कैसर है, हाँ जी। ये अपना वही प्यारा लड़का है ना जिसका बड़ा पाटे गेंद जैसा मुंह है। यार हंसा ना करो, मैं जुगत नहीं करता, एक मिसाल देता हूँ याद कराने के लिए कि वो वाला कैसर है। ऐसे ही यार, इस कदर खूबरू नौजवान है, कई मर्तबा हमने बताया है। गौरी साहब आपके साथ तो वो उठता बैठता है, आप बताता गौरी हूँ। साहब के सामने तो खूबसूरत ही है। मैं बताता हूँ कि अजीजी अपनी जगह दानश्वर हैं। उन्होंने कहा कि पाटे गेंद की तरह। नहीं, मैंने कैसर फरूख साहब को देखा है, इंज मुंह जिवें आलू की टिक्की ठंडी हुई होती। अच्छा मेरी बात सुनो यार, उसने लाहौर की 3 कॉलोनीज में बाकायदा एक सर्वे किया है, फिजिकली खुद गए और उन्होंने हमें जो अपनी रिसर्च कंपाइल करके दी है उसके मुताबिक कमोबेश लाहौर की उन 3 आबादियों में 30% खानदान ऐसे हैं जो अपने बच्चों की तालीम की गर्ज से शहर में आके आबाद हुए हैं और 18% खालिसतन ऐसे खानदान हैं जो सिर्फ अपने बच्चों, बल्कि कहना चाहिए कि बच्चियों की शादी करवाने के लिए शहरों का रुख उन्होंने किया, शहरों में आके आबाद हो गए, यानी देहातों को हमेशा के लिए एक तरह से खैरबाद कह। ये 3 आबादियों में रिसर्च किया रिसर्च कैसर किया, ने। जी जी। अच्छा कैसर का ये फायदा कि रिसर्च भी कर लेंदा ते नाल आटा भी इकट्ठा करदा। छोटा या बांदर भी मोटे ते पाया होता है। यार रे आटा एवें नहीं अगले देंदे, बांदर दे मुंह ते ही देंदे। और बंदर से सीरियस होके कान में बातें कर रहा होता है, ठीक जा रहे हैं ना मैं। क्यों जी साथ मोड़ रहे हैं? यार नहीं फजूल बात, तो मुझे भी साथ यार लपेट लेते हो। चंगे भले पर्सनैलिटी वाले बंदे हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती जुगत करते हो? मैं जुगत कर रहा हूँ। मैं जुगत कर। अच्छा मेरी बात सुनो यार, लम्हा फिक्रिया डिस्कस हो रहा है तो तुम मुझे किधर ले गए? तेनू आया ले ला बहुत आला। आपको कुछ नहीं कहना है ना जी, अच्छा इंग्लिश सही कर रहा हूं। पहले उर्दू ते सही करा ले, सीधा इंग्लिश नहीं हाथ पा ले। यार खुदा के लिए कैसर की जान छोड़ दो, इतना संगीन किस्म का लम्हा फिक्रिया मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो अदादो शुमार तुम्हारे सामने रखे हैं, इसका मकसद ये था कि हम लोगों ने अपना वतीरा बना लिया, हम एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए कि हमने अपने बच्चों की शादी जो शहरों में रहने वाले उन्होंने गांव देहात में करनी ही नहीं, शजरे ममनुआ करार दे दिए हमने। और खुदा के लिए हमें सोच से बाहर आना होगा, अपने आप को खींच के लाना होगा। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है बच्चों की शादियों के लिए। लोग जिस तरह बाहर के ममालक में बैठे हुए ना, अमेरिका कनाडा में, और वो बेचारे धक्के ना लागे थे, बेजोड़ से रिश्ते ढूंढ के तो शादियां करते हैं कि जी हमने उधर नहीं शादी करनी। बिल्कुल वही हालत मुल्क के अंदर भी हो गई हुई है। सही कह रहे हैं। ये जो गांव के लोग हैं बेचारे, उनको चूंकि शहर के पढ़े लिखे लोग, अब गांव में अगर कोई बच्ची पढ़ लिख भी जाती है तो उसका रिश्ता उधर पढ़े लिखे लड़के से नहीं हो रहा, या गांव में नहीं है कोई पढ़ा लिखा लड़का, तो शहर के पढ़े लिखे तो बहुत से हैं, बहुत सारे, तो वो रिश्ता नहीं करते। वो कहते हैं जी गांव से कहां से लड़की लानी है। और वो लड़की जो है अगर वो शहर में आके उसने ग्रेजुएशन की है, वापस अपने गांव जाके आबाद हुई है अपने आबाई घर में, तो भी यहाँ पे जो लड़के वाले हैं वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि हमारी जो बारात है वो गांव जाए। अच्छा अगर बादले ना खास्ता उनको ये रिश्ता करना पड़ता है तो फिर फरमाइश साथ ये कर दी जाती है कि जी हमें बारात गांव ना लेके जानी पड़े, आप किसी करीबी शहर के मैरिज हॉल में इंतजाम करें। खुदा के लिए आपने गांव को बिल्कुल ही शजरे ममनुआ बना दिया। हालांकि गांव जो है ना जी, मैं समझता हूं कि गांव के जो बच्चे हैं, बच्चे भी और बच्चियां भी जी, इंतहाई सेहतमंद, हार्ड वर्कर। अगर बच्चियों को ब्याह के लाया जाए गांव से, तो मैं समझता हूँ खुदा की कसम ईद हो जाए शहरों वालों की। वो आगे बच्ची बताए इनको कि किस तरह रहते हैं, किस तरह घर संभालते हैं। बहुत अच्छा। और बच्चियां बड़ी ट्रेंड और बड़ी माशाल्लाह सुलझी हुई हैं अब गाँव सुगड़ घर की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ी मेहनती बच्चियां। सिलाई और कढ़ाई का काम भी वही बच्चियां सीखी होती हैं। तो सी कोट से को फुल कटवाना है यार, सिलाई और कढ़ाई ये कौन सी आजकल के दौर में खूबी बता रहे हो? अब ये सारा कुछ रेडीमेड है। जानते यार बड़ा तेरा पुरानी रजाइयर का पिंड है। अब ये क्वालिटी नहीं, अब मैं कह रहा यार हूँ जुगत इंप्रूव करवाओ, तो चलो रजाई कह ले लेकिन नहीं कहे। भाईजान बच्चियां जो गांव की हैं वो सिलाई कढ़ाई बहुत पीछे रह गई है।
वो माशाल्लाह बहुत सी जदीद क्वालिटीज की मालिक होती हैं, वो पढ़ी लिखी बच्चियां हर होती फील्ड में, हैं, हाँ जी। उनको हर चीज का पता है। मीडिया जो है इतना वसी हो गया, गांव-गांव पहुंच गया, हाँ जी। हर चीज दिखा रहा है उन बच्चों को भी। वो बच्चियां माशाल्लाह बड़ी अवेयरनेस वाली बच्चियां। अच्छा, इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि सिर्फ शहर के लोगों का ही कसूर नहीं है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो भी गांव में रिश्ता करने से एतराज कर रहे हैं। उनकी भी ख्वाहिश है कि बेटी या बेटे का रिश्ता शहर में किया जाए और वो शहर जाकर आबाद हो जाए। यानी हमने क्या चाशनी लगा दी है शहरों में, और लगा भी दी है, सच्ची बात है। मतलब जिंदगी की जो हर सहूलत है हमने शहर में दे दी है, उसको एक स्टेटस सिंबल बना के रख दिया है, और गांव को हमने एक पसमानदगी की अलामत बना दी है। तो लामाला फिर यही नतीजा निकलना था। हाँ जी, हाँ जी। और जो गांव वालों के काम होते थे ज़राअत वगैरह, एग्रीकल्चर से, या ये अपना डेयरी फार्मिंग, या ये जिस तरह गांव के कारोबार जितने भी हैं, उसमें गांव वाले अब कम अट्रैक्शन समझते हैं। वो समझते हैं कि हमें जाके कोई शहरी काम करना चाहिए। हालांकि बेशुमार लोग जो है ना जी, बाहर के ममालिक में वो ऐसे हैं शहरों में रहने वाले कि वो जाके कारोबार अपना गांव में कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चर की तरफ दौड़ रहे हैं, वो ये डेयरी फार्मिंग की तरफ दौड़ रहे हैं, दूसरी भाई फार्मिंग। हर तरह की जो फार्मिंग है उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं ना। जब वो चीज मॉडर्नाइज हो जाती है फिर वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहता लोगों का, कॉम्प्लेक्स उसको नहीं मॉडर्नाइज रहता। कर दिया जाए, जी, जी, नहीं जी। किया जाए ना। वरना डेयरी फार्म की असल जगह जो है वो शहर तो नहीं है। डेयरी फार्म में तो मतलब कई जगह आकर अगर कोई बैठ जाए आके तो दूसरी बात है, शहरों में। हाँ जी, तो गोगा जी पिंड वापस जाओ। और दूसरा पाजना है, तब ये जो पेंडू लफ्ज जो है इसके कम्प्लेक्स से हमें निकलना चाहिए। पिंड के लोग जो हैं ईमान से एडी महंगी गड्डी अगले रखी ट्रैक्टर तो उतर गए ने, तो मर्सिडीज़ च बह गए। हाँ, जरा को मेहनत करके अगले एंकर बन गए ने पिंड। हाँ हाँ, ये वाकई सीरियसली पिंड के लोग बड़े जदीद हो चुके हैं। ऐसा ऐसा अच्छा कपड़ा पहनते हैं और ऐसी ऐसी अच्छी डिजाइनिंग होती है। करते हैं। अवेयरनेस माशाल्लाह गांव के लोगों को पत्थर के घर बना लिए इस जी। कम्प्लेक्स से निकल आना चाहिए। आपका सैन फ्रांसिस्को वाला घर जो है खाली पड़ा रहता है अब? नहीं नहीं, वो तो बेच दिया हुआ बहुत देर से। बहुत अच्छा। नहीं, मैं तो वापस पिंड आ गया। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नोमी को लेकर, बल्कि नोमी की एक नई शिकायत लेकर हमारे प्रोग्राम में शरीक है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या बताऊं जुनैद बेटा, मैं तो जीते जी मर गया हूं। क्या हो ये गया? हफ्ते पहले जो मैंने मंजर देखा है, जब वो आंखों के सामने आता है तो दिल खून की आंसू रोता हुआ है। क्या? सिगरेट पीते हुए मैंने इसको देखा है। ओए होए, ओए इस उम्र में सिगरेट शुरू कर दी? तो अंकल सिगरेट कौन सा शनाख्ती कार्ड दिखा के खरीदते हैं? ओह गॉड से, ये जो तुमने हरकत की है ना, ये नाकाबिले माफी है। तो मामा इनको कई सालों से कह रही हैं छोड़ दे सिगरेट, ये तो नहीं छोड़ते और सारा गुस्सा इनका मुझे पे निकलता है। चलो ये लानत में अगर मैं मुब्तला हो गया हूं बेटा, तुम तो इससे बचो। मैंने तो पहली दफा इनकी ही डब्बी से लेके ऐसे देखा था, उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि इसको कैसे पीते हैं। मैं तो नहीं पीता सिगरेट, इन्हीं की डब्बी ये पीते हैं खुद। ये सुन रहे हैं आप? बच्चों की जो भारी अक्सरियत है वो जब पहली बार सिगरेट पीती है तो खानदान में मौजूद किसी बड़े के सिगरेट की डबिया से निकाल के पीती है। वो जुनैद बेटा, उसकी सजा मैं भुगत भी तो चुका हूं। एक दफा बाईपास हुआ है, 2 दफा स्टंट डल गया है, अब अपनी औलाद को भी उस तरफ झोंक दूं? तो आप भी बाज आए, आपको मामा कहती हैं कि सिगरेट छोड़ दें। मेरा ख्याल है कोई, हम छोटे छोटे थे जब से इनकी लड़ाई होती है। तो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अब मुझे लग गए हुए हैं, मैं क्या करूं। तो मामा के भाई ने भी छोड़ दिया, हमारे मामू ने। अच्छा। तो ये कहते हैं नहीं मुझसे नहीं छोड़। झूठ बोल रहा है ये जुनैद बेटा, मुझ पे मुद्दा डालना चाहता है। ये स्कूल में इसने सिगरेट शुरू किए। अंकल स्कूल में मैं भी पढ़ता हूँ, मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पिया। हमारी क्लास में 8-9 बच्चे सिगरेट पीते हैं, हमने तो उनको बुलाया भी नहीं। और नोमी को भी रोकते हैं कि ऐसा ना किया करो। तुम्हारी क्लास में 8-9 बच्चे स्मोकिंग करते हैं? जी सर आप कहाँ हैं? आपका कोई कंट्रोल नहीं है स्कूल में? दिनेश साहब, कंट्रोल की बात नहीं है।
हमारे दौर में खाल उतार देते थे बच्चे की, अब दौर ही ऐसा आ गया है, अब माँ बाप को परवाह नहीं है बिल्कुल। अच्छा, बल्कि शिकायत लगाए तो उल्टा हमसे लड़ते हैं। अब देखें, जब इस बच्चे को मैंने पहली दफा सिगरेट पीते देखा है तो मैंने इनको फोन किया कि आए जरा आपसे जरूरी बात करनी है, स्कूल आए। तो कहने लगे फीस चाहिए आपको। मैंने कहा नहीं, बच्चे के बारे में जरूरी बात करनी है, आप स्कूल आए। कहते आपने शिकायत ही करनी होगी, आपके पास शिकायतों के अलावा है ही कुछ नहीं, खुद ही हैंडल कर ले। जुनैद साहब, कोई नहीं परवाह करता बच्चों की आजकल। बात सुने सर, आपके लिए आपके बच्चे के मुस्तकबिल से ज्यादा भी कोई अजीज चीज है? सर बच्चे को भी तो सोचना चाहिए कि बाप हमारा हमारे लिए मेहनत कर रहा है। हाँ, तो वो सिगरेट ना पिए, खुद भी जरा कंट्रोल करे। तो आपका फर्ज है ना कि बच्चे पे नजर रखे। जुनैद साहब, हर बंदा बच्चे पे ही ड्यूटी दे रहा है। क्या मतलब है? बाप है तो वो भी बच्चे पे नजर रखे हुए है, टीचर है तो वो बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं, अब मामा है तो वो बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, चाचू हैं तो वो बच्चे के पीछे शुक्र करो कि तुम एक ऐसे माशरे में, ऐसे घर में रहते हो जहां तुम पर नजर रखी जाती है, जहां तुम्हारा ख्याल किया जाता है। ख्याल क्यों करते हैं? मैं मिट्टी खाता हूँ। जुनैद अंकल, मुझे एक बात बताएं, जो हमारे स्कूल के बिल्कुल सामने दुकान खुली है, उसने सिगरेट किसको बेचने हैं? आखिर हमें ही बेचने हैं ना। तो ये स्कूल वालों को चाहिए ना कि उसे मना करें। हाँ बिल्कुल, क्यों मना नहीं करते सर आप? इन्होंने उसको किस लिए मना करना है? हमारे जो वहां पे ड्राइंग के टीचर हैं, उन्होंने ही तो वो दुकान खुलवाई हुई है अपना, उन्होंने कोई भतीजा भांजा बिठाया हुआ है उसमें। सही कह रहे हो, लेकिन किसी का भतीजा भांजा ना भी हो तो स्कूल वाले केयर ही नहीं करते। जुनैद अंकल, हमारी क्लास में ये जो सिगरेट पीने वाला ग्रुप है ना, मैंने इनसे बात भी की है। मैंने कहा ये सिगरेट ना पियो, ये तरह तरह की खतरनाक बीमारियां लगा देते हैं। तो इनका एक दोस्त कहता है कुछ भी नहीं होता, मेरे अब्बू 35 साल से पी रहे हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मोनी भी तो पीता है ना, जो आपका हमसाया है। यार क्या फजूल किस्म के दलाइल दे रहे हो, लेम एक्सक्यूजेस। खुदा का नाम लो, दुनिया भर के डॉक्टर्स कह रहे हैं, मेडिकल साइंस कह रही है कि सिगरेट नोशी किस तरह आपके जिस्म के अंदर जाके जहर बन जाती है, और तुम लोगों को जरा भी एहसास नहीं है। जुनैद बेटा, हमने इस मौजू पे टीचर से बात की है, वो कहते हैं जी स्कूल की चार दीवारी के अंदर तो नहीं पीते, स्कूल के बाहर पीते हैं। भाई बाहर भी तो तुम टीचर हो, उनके उस्ताद हो। बताए ना सर। स्कूल के बाहर ही तो सिर्फ नहीं पीते, वो मोनी ने वो तो बाथरूम में भी माचिस रखी हुई है। माचिस वो उधर बाथरूम में भी जाके पीते हैं लड़के। अच्छा नोमी, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं अभी 2-4 दिन पहले खबरों में देख रहा था कि पंजाब के वजीर आला ने ऐलान किया है कि वो स्कूलों में बच्चों के ड्रग टेस्ट लेंगे। रैंडम टेस्ट किया जाएगा, अचानक कॉलेजेस में, स्कूलों में बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। जिस बच्चे के खून में सिगरेट नोशी या ड्रग्स पाई गई, उसका नाम स्कूल से खारिज कर दिया जाएगा। ये नौबत आ जाएगी फिर। इस तरह की बातें पहले भी बहुत दफा हो चुकी है। पहले भी कहते थे जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्कूल से निकाल देंगे, कोई भी नहीं उधर रोकता। मैं तो पीता भी नहीं, मुझे तो वो जब एक दफा पिलाया उन्होंने तो इन्होंने देखा तो शोर मचा दिया। अब मैंने तुझे कहीं सिगरेट पीते हुए देखा ना तो गोली मार दूंगा। तो मेरी बात सुने, ये मसले का हल नहीं है। ये देखे, सख्ती भी जरूरी है, लेकिन बच्चे को साथ समझाएं भी, खुदा के लिए बच्चे को समझाएं कि ये कितना खौफनाक खेल है। जुनैद अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिर्फ सख्ती करने से ये काम नहीं होगा, सबको तवज्जो देनी पड़ेगी। ये शॉप्स भी बंद करवानी पड़ेंगी। ये बड़े तेज लड़के हैं, किसी के हाथ नहीं आते। हाँ बिल्कुल, पूरी सोसाइटी को मिलके इस नहुसत का मुकाबला करना पड़ेगा। जुनैद बेटा, मेरी परेशानी कोई नहीं समझ रहा, मैं किसके आगे अपना रोना रहूं? मेरा एक ही इकलौता बेटा है। बस कर दे अब्बू, आप तो शुरू ही हो जाते हैं। हर जगह मेरा इकलौता बेटा है, मेरा एक ही बेटा है, एक संभाला नहीं जा रहा, 3-4 होते तो पता नहीं क्या होता। सुबह इनसे पॉकेट मनी मांगता हूँ तो 20 रुपए देते हुए हाथ कांप रहे होते हैं। 3-4 होते तो आपको तो गश पड़ जाता। अकलौता बेटा है मेरा, अकलौता बेटा है मेरा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, आजकल PSL हो रही है, और जब अपना क्रिकेट का कोई भी इवेंट हो रहा हो ना, जी जी, उस वक्त बड़ा ये डिस्कस होता है कि वो बाएं हाथ से कराता है या लेफ्ट हैंडर है बैट्समैन। बताऊं कि ये जो खब्बू होते हैं बाएं हाथ से काम करने वाले, ये वैसे तो
85% से लेकर 90% तक लोग जो है ना वो दाएं हाथ से काम करते हैं। हाँ जी, और 10 से 15% जो है वो लेफ्ट हैंडर होते हैं, जिन्हें हम खब्बू कहते हैं। यानी इस हिसाब से 20,000 में से एक बंदा खब्बू है दुनिया में। अच्छा, इसमें अब दिलचस्प चीजें आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये तुम्हारा तो पुम्मा बनता है। मशाहीर जो होते हैं ना जी, यानी सियासी मशाहीर, जी जी जो सियासत में मशहूर लोग हैं, उनमें 50% लोग खब्बू होते हैं। हाँ जी, इसीलिए सियासतदानों के बारे में कहा जाता ना कि दिखाते सज्जी है मारते खब्बी है। हाय हाय। और हालैंड की एक तहकीक के मुताबिक ये जो खबचू सियासतदान है ना जी जी, ये दाएं हाथ वाले सियासतदानों से ज्यादा तेज हैं। अच्छा, माहिरीन के मुताबिक किसी भी हाथ को बालादस्त बनाने के लिए 25% जीन्स किरदार अदा करती हैं। बॉडी की जो जीन्स हैं ये किरदार अदा करती हैं कि ये सजू होगा या खब्बू होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी जो है 75% वो आदात हैं। आदत पड़ जाती है किसी बच्चे को, वालिदैन अगर ना रोकें, अक्सर वालिदैन कहते हैं नहीं नहीं बेटे दाएं हाथ से खाओ, दाएं हाथ से काम करो, दाएं हाथ से लिखो, दाएं हाथ से रोटी पकड़ो, तो कई वालिदैन नहीं परवाह करते। वो 75% वो किरदार अदा करती है लापरवाही या आदत कह लें, वो आहिस्ता आहिस्ता खब्बे हाथ से काम करने की आदत होती है, बाएं से, यानी लेफ्ट हैंडर वो हो जाता है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात यह है कि ये बाएं हाथ से काम करने वाली आदत सिर्फ इंसानों में नहीं, हैवानात में भी है। हाँ जी, कई जानवर भी खबचू होते हैं। हाँ जी, आपने कई बिल्लियों को देखा होगा वो खब्बे हाथ से खा रही होती है। कोलों बिल्ला भी नहीं कहीं जगह सजे ना खाई देखो ये आगा। असल में बिल्ले भी बेचारे ना डरते हैं बिल्लियों से। हर गोरा बंदा और बिल्ला भी बेगम से डरते हैं। अच्छा, वैसे तो ये बाएं हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं इनकी फहरिस्त बहुत तवील है, मगर खास तौर पर अरस्तु, आइंस्टाइन, बारक ओबामा, बिल क्लिंटन, नरेंद्र मोदी, असामा बिन लादन, शहजादा विलियम, फिर अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स, टॉम क्रूज, अंजलिना जोली, क्रिस गेल, ब्रायन लारा, वसीम अकरम, लायनल मेसी, रफील नडाल, अय्यी, बहुत बहुत बड़े लोग जो है ना वो खबचू है। अभी आप बयान कर चुके हैं कि जो लोग बीवियों से डरते हैं वो खबचू होते हैं। आई एम सॉरी, मैं बड़े बंदे हैं जिहड़ा नास्ते खबचू बन गया है, मैं सजू ही देते आनी जी। एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि दुनिया में तकरीबन 20% अफराद ऐसे भी हैं जो दोनों हाथों से एक ही महारत के साथ काम कर लेते हैं। मुख्तलिफ काम जो है, इसी तरह क्रिकेट में भी है, बाज जो है बैट्समैन जो है वो इक्वली गुड लेफ्ट हैंडेड भी है, राइट हैंडेड भी है, और बॉलिंग में भी ऐसे कर लेते हैं। बहुत सारे प्लेयर ऐसे। अब बिल्कुल इसमें वाकई करेक्टर जो है ना वो ज्यादा मशहूर हुए हैं, जो दोनों हाथों से काम कर लेते हैं, यानी बैटिंग भी बॉलिंग भी। मसलन वहाब रियाज, वो लेफ्ट हैंड बॉलर जबकि राइट हैंड बैट्समैन है। इंजमामुल हक राइट हैंड करते हैं, जब लेफ्ट हैंड से काम करने वाले हमारे सियासत बैट्समैन जबकि राइट हैंड का बॉलर है वो माइकल बेवन, वो बॉलिंग राइट हैंड से कराता है जबकि बैटिंग लेफ्ट हैंड से। इजाज अहमद इसके सौरियों के शहर का, वो बैटिंग राइट हैंड से जबकि थ्रो लेफ्ट हैंड से, और बीवी से कोट दोनों हाथों से। सियालकोट के साथ ये जरा होता है, बताना पड़ता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलवी माहिरीन गलत नहीं क्यों करनी पाई? यू मीन जुगत? हाँ जी, हाँ जी, जेड़ियां तुसी बहुत करदे हो काम नहीं आता। माशाअल्लाह, तेनू साइकिलों का काम नहीं आता। जिद्दां तू तेज है ना, मैं किसी दिन आके देखना तू साइकिल मूदी करके गराज च खोली। ऑस्ट्रेलवी माहिरीन की तहकीक के मुताबिक दिमाग के इस्तेमाल के हवाले से भी दाएं और बाएं हाथ वालों में फर्क पाया जाता है। अच्छा। जी हाँ, दाएं हाथ वाले अपने दिमाग का बायां हिस्सा, जबकि बाएं हाथ वाले दिमाग का दायां हिस्सा इस्तेमाल करते हैं।
اور دایاں حصہ خاص طور پر تخلیقی صلاحیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی, باکسنگ میں 40% گولڈ میڈلز کھبے باکسروں نے جیتے ہوئے. دیکھو نا ذرا, کھبچو بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تھانوں رکھاں گا کھبے آدھی. اب بس یہی ہونا کیا ہی تو جیت گئے نہیں. دنیا بھر میں ہر سال 13 اگست باضابطہ طور پر بائیں ہاتھ سے کام سر انجام دینے والوں کا دن منایا جاتا ہے. ارے واہ. ایک اور دلچسپ تحقیق, جی جی بائیں ہاتھ والے جو ہے نا جی, یہ قدرتی طور پر ریاضی کی زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اچھا یعنی میتھ میں بہت جینیس ہوتے ہیں. تیز ہوتے ہیں. واہ. ایک اور تحقیق کے مطابق بائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کی نشو نما سست روی کا شکار ہوتی ہے. ہاں جی, جو کھبچو ہوتے ہیں نا, ان کی نشو نما یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے, سست ہوتی ہے. اور یہ دائیں ہاتھ والوں کے مقابلے میں بلوغت تک تقریباً 5 ماہ بعد پہنچتے ہیں. 5 مہینے لیٹ ہوتے ہیں. اچھا, دنیا بھر میں اب ہر چیز دائیں ہاتھ والوں کو مد نظر رکھ کے ڈیزائن کی جاتی ہے. ہاں جی مثلاً ماؤس رائٹ ہینڈ والوں کے لیے ہے, ہاں جی لیفٹ ہینڈ والوں کے لیے کمپیوٹر ماؤس کو استعمال کرنا آسان نہیں ہوتا. عام طور پہ سکولوں میں بنائے گئے جو ڈیسک ہوتے ہیں, ہاں جی. ان کا بازو بھی دائیں طرف رکھ ہوتا ہے. ہاں جی بالکل رائٹ. ہے جی, جس پر کاپی رکھ کے آسانی سے لکھا جا سکتا ہے. بائیں ہاتھ والوں کے لیے, بیچاروں کے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے, بلکہ میں ایک بار ذکر کرنا چاہ رہا تھا اس پہ حال میں اس حوالے سے کہ ان کے لیے اسپیشل چیئرز ہونی چاہیے. ہاں جی 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 جی. اب اپنا چونکہ میوزیکل آدمی ہے گوری, اس کو یہ بتاتے چلیں, بلکہ اس کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ جو موسیقی کے رسیا افراد ہیں, یہ گٹار یا وائلن بھی دائیں ہاتھ والوں کے لیے بنتا ہے. کھبچوؤں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. کینچی کا استعمال بھی بائیں ہاتھ سے آسان نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے. محققین کے مطابق بائیں ہاتھ سے لکھنے والے زیادہ ذہین ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. بائیں ہاتھ والوں میں سننے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. دیکھو نا کیسی دنیا میں صرف ایک چیز ایسی بنی ہے کہ جو دائیں سے بھی استعمال کرو تو بھی اتنی طاقت سے, اور بائیں سے کرو تو, اور وہ ہے بیوی کی جوتی. یہ تحقیق تم سے اچھی کوئی نہیں بتا سکتا. واہ واہ واہ, ویل ڈن. یہ تحقیق نہیں, تجربہ ہے. دیکھو نا یہ ایک اور چیز, بائیں ہاتھ استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں نا جی, وہ نشے کی طرف مائل ہونے میں ذہنی دباؤ کے چانسز ان میں زیادہ ہوتے ہیں. ہاں, اور یہ افراد بے خوابی, سر درد اور دماغی امراض کا شکار بھی زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے. یہ ایک تحقیق ہے جو میں نے بتا دی. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی پتے کی بات یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اچھے وقت کا انتظار کرنے کی بجائے وہی ہاتھ بڑھا کر وقت کو تھام لیں اور اس کو خود اچھا بنائیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.